हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आई वांट टू टेल you that what we were doing. We were studying the chapter biological classification under the unit taxonomy. So today we are going to study about kingdom fungi and this will be the last part of this chapter. Previous 4 parts are available in the channel. Go through them, and if you haven't watched them, if you have missed them, so please go through the videos because they are very important for your upcoming examination of MNS 21. Okay, before proceeding, I want to give you few informations. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. And if you are a MNS aspirant and if you are preparing for MNS 21 examination, then you can join our online courses. There you will get 2 to 3 hours live classes from Monday to Saturday, and we are arranging extra classes on Sunday, doubt clearing sessions on Sunday. So you can get our live classes, you will get PDF notes there, you will get test series there. So don't forget to join our live sessions if you are so much desperate to clear your written examination of MNS 21. Okay, you can follow us on Instagram, Facebook, and as well as you can subscribe our Telegram channel. There you will get some of the recordings of our live sessions and you will get some PDF notes. Okay, so now we are moving towards our kingdom fungi. चलिए किंगडम फंजाई की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आई हैव रिटन सम टर्म्स, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म वन बाय वन. I will try to cover every important line which is mentioned in your NCERT, but some students have asked me that ma'am, our NCERT is enough for the preparation of MNS 21 examination. So I want to tell you that MNS examination has changed its pattern. उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है. You have to follow NCERT, and if you are referring some other books, then that is also good. So you can go through the ABC biology आती है, या फिर if you want to solve MCQs, then you can go with the आपके फिंगर टिप्स आते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं. ABC biology is the best book. ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप उसको रेफ़र करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू विद देम. बाकी MCQs के लिए अरिहंत पब्लिकेशन आता है, MTG पब्लिकेशन आता है, फिंगर टिप्स आते हैं. कोई भी बुक आप एक अच्छी लेकर रेफ़र कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई की तरफ आगे बढ़ते हैं. स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी एवरीथिंग अबाउट फंजाई. माइकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम फंजाई के बारे में सब कुछ स्टडी करते हैं. तो आपको ये टर्म याद रखना है. व्हाट इज़ माइकोलॉजी? माइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ फंजाई. Okay, I am repeating a sentence for 2 to 3 times so that if you are making notes with me, so that you can write those lines in your notebooks as well as you can learn it with me. आपको बाद में रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े. That is the reason why I am repeating a sentence for so many times. Okay, so what is the study of mycology? What is the study of fungi? The study of fungi is known as mycology, and you should know this term, that what does it mean. नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन. हम फंजाई के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट दे आर कॉस्मोपॉलिटन. व्हाट डज इट मीन? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एयर, वाटर, लैंड हर जगह पाया जाए. ठीक है, तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, ये हर जगह पाए जाते हैं. वाटर में भी फंजाई हैं, एयर में भी और लैंड पे भी. हर जगह फंजाई आर अवेलेबल, सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, तो अब अगर आपको कहीं कॉस्मोपॉलिटन लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज इट मीन, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई लिविंग सब्सटेंस या लिविंग थिंग या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज़ नोन एज कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट वन इज हाइफा एंड माइसीलियम. वी हैव टू डिस्कस दीज 2 टर्म्स, कि हाइफा क्या होता है, साथ ही साथ माइसीलियम क्या होता है. फंजाई बॉडी, जो फंजाई होती है, इसकी बॉडी क्या होती है बेटा, दैट इज़ टिब्यूलर फॉर्म. ये एक टिब्यूलर फॉर्म की बॉडी होती है. ठीक है, और उसका जो एक टिब्यूल होता है. ठीक, दिस यूनिट ऑफ फंगल बॉडी, फंगल बॉडी की जो यूनिट होती है, जो एक टिब्यूलर फॉर्म होता है, दैट इज़ नोन एज हाइफा.
ठीक है, उसको हाइफा या हाइफी कहते हैं आप, ठीक है। जो इसका मतलब जो फंजाई है इसकी बॉडी ट्यूबुलर स्लेंडर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक एक ट्यूब्यूल होती है जो सिंगल यूनिट होती है फंजाई की बॉडी को, कि दैट इज नोन एज हाइफी या हाइफा हम उसे कहते हैं। इसके बाद ग्रुप ऑफ हाइफी, जब ये ग्रुप बना लेते हैं ग्रुप ऑफ हाइफी या हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। यानी सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा या हाइफी एंड द ग्रुप ऑफ हाइफा और हाइफी जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट कर लें, द ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है किसका, फंजाई का। तो द फंजाई बॉडी, फंगल बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइफा, माइसीलियम के फॉर्म में इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है। द सिंगल ट्यूबुलर स्लेंडर स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा एंड द ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। जो फंगल सेल वॉल होती है बेटा, फंगल सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है काइटिन, पॉलीमर है ये, ठीक है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ काइटिन, अगर हमने यहाँ पे काइटिन का नाम लिया है तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि काइटिन किस ऑर्गेनिज्म के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। तो काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। साथ ही साथ फंगल सेल वॉल में भी क्या पाया जा रहा है, काइटिन। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी फेवरेट फॉर नीट एग्जामिनेशन, ये नीट एग्जाम्स के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हैं, कई बार नीट में भी पूछे गए हैं एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर MNS21 एज वेल। कि जो फंगस होता है उसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। साथ ही साथ आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज बेसिकली अ पॉलीमर। आगे बात करते हैं, व्हाट आर लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। लाइकेन्स एंड माइकोराइजा आर द फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन? Symbiotic association is an interaction where both the interacting species are equally benefited। यानी जब दो लोग साथ साथ रह रहे हों, दो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हों और वो एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट पहुंचाएं, then this type of interacting association is known as symbiotic association। ठीक है, यानी जब दो स्पीशीज़ के लोग एक साथ साथ रह रहे हों और वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएं, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इस एसोसिएशन को कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन एंड माइकोराइजा आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ फंजाई। ये लाइकेन और माइकोराइजा जो भी हैं ये फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं। ठीक, अब लाइकेन में कौन कौन आते हैं, माइकोराइजा में कौन कौन आते हैं, हमने कह तो दिया कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन लाइकेन में कौन आएगा, या फिर माइकोराइजा में फंगल एसोसिएशन है तो किसके साथ है। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एलिगा एंड फंजाई। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, एलिगा और फंजाई का। एलिगा और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट पहुंचाते हैं और क्या बना लेते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। इसके बाद व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा is a symbiotic association with fungi and the roots of higher plants। higher plants की जो roots हैं उनके साथ fungi एसोसिएशन बना लेते हैं, symbiotic एसोसिएशन बनाते हैं, और इस symbiotic एसोसिएशन को हमने क्या टर्म दिया है, माइकोराइजा। देखो बेटा, अभी आई हैव सेड कि लाइकेन्स में कौन कौन आते हैं, एलिगा एंड फंजाई। हमने क्या कहा, एलिगा और फंजाई दोनों आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं लाइकेन के। तो एलिगा का क्या काम होता है, फंजाई का क्या काम होता है। एलिगा आर बेसिकली ग्रीन इन कलर। ठीक है, एलिगा जो होते हैं दे आर बेसिकली ग्रीन इन कलर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे कैन कुक फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो एलिगा क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, सो दे आर नोन एज फाइकोबायोंट। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे बेटा, दे आर नोन एज फाइकोबायोंट। ठीक है, एल्गा क्या कहलाते हैं, हमारे फाइकोबायोंट कहलाते हैं, और
लाइकेन के एसोसिएशन में फंजाई का क्या काम है? दे एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, जो भी हमारी अर्थ सरफेस है, सॉइल है, उससे रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और ये रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करके एल्गा को देते हैं ताकि वो फूड को कुक कर सकें, फूड सिंथेसाइज कर सकें। सो दिस इज द रीजन वाई फंजाई आर नोन एज फाइकोबायोंट, एल्गा आर नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंजाई आर नोन एज माइकोबायोंट। ठीक है, फंजाई को क्या कहेंगे हम? माइकोबायोंट, और एल्गा को क्या कहेंगे? फाइकोबायोंट। ये दोनों एसोसिएशन में एक साथ साथ रहते हैं और क्या बनाते हैं? लाइकेन्स बनाते हैं। इसके साथ लाइकेन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नीट में भी पूछा जा चुका है, दैट इज कि विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? तो लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा कहाँ, वहाँ पे लाइकेन ज़्यादा पाए जाएंगे, ऐसा कुछ है? तो नो, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा, लाइकेन्स आर नॉट फाउंड इन दैट एरिया। वहाँ पे लाइकेन्स नहीं पाए जाएंगे। तो हम क्या पहचान जाते हैं? इफ़ एट एनी प्लेस लाइकेन्स आर नॉट फाउंड, सो वी कैन से दैट दिस particular area is having sulfur dioxide pollution. That's why we are calling them as an indicator of sulfur dioxide pollution. Okay, so you can take a very quick screenshot, no need to go anywhere. We will definitely write back with another part of the video. Okay, so now we will see what are the classes of fungi. जो किंगडम फंजाई है उसको भी हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है और वो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। साथ ही साथ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न, आपको क्या याद करना है? इन चारों क्लासेस के नाम, और साथ ही साथ उन चारों क्लासेस में कौन कौन से फंजाई आते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, आपको इसके बारे में भी याद करना है। सबसे पहली क्लास है आपकी फाइकोमाइसिटीज़। जो क्लास है वो कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज़। और फाइकोमाइसिटीज़ में हमने क्या क्या रखा है बेटा? म्यूकर को रखा है। म्यूकर को डंग मोल्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम डंग मोल्ड, यानी जो आपका गोबर होता है उसका वाला मोल्ड है ये, उस पर पाया जाता है, जो फफूंदी उस पर लग जाती है। इसके अलावा फाइकोमाइसिटीज़ का दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस इज़ नोन एज ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड पे जो फफूंदी लगती है इसको, ये वो वाला मोल्ड है। राइजोपस इज़ नोन एज ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी इसका नाम है। ठीक है, ये हो गई पहली क्लास। पहली क्लास कौन सी थी? फाइकोमाइसिटीज़। और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? म्यूकर एंड राइजोपस। म्यूकर इज ऑल्सो नोन एज डंग मोल्ड एंड साथ ही साथ राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास है बेटा एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ की क्या एग्जाम्पल्स हैं? आपको 5 नाम बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए। सबसे पहला है पेनिसिलियम, फिर है यीस्ट। यीस्ट को क्या नाम दिया जाता है? यीस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट, बेवरेजेस यीस्ट। ठीक है, फंजाई है, बेकर्स का फंजाई है। यीस्ट का बेवरेजेस बनाने में साथ ही साथ आपके जो बेकर्स होते हैं ये यीस्ट को, खमीर को बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए बेकर्स यीस्ट भी इसे कहते हैं, बेकर्स फंजाई भी इसको कहते हैं। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए यीस्ट के बारे में। साथ ही साथ एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर से आपको मिलता है सिट्रिक एसिड, ये भी आपको याद होना चाहिए। एस्परजिलस नाइगर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। हमें सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर से। क्लेविसेप्स हो गया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि न्यूरोस्पोरा बेसिकली जब हमें प्लांट पर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता था, तो जैसे उधर जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला का काफ़ी यूज़ किया गया है एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए, वैसे ही यहाँ पे न्यूरोस्पोरा का काफ़ी यूज़ किया गया है एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न वाई न्यूरोस्पोरा इज़ नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। आगे बढ़ते हैं बसीडियोमाइसिटीज़ की तरफ। बसीडियोमाइसिटीज़ में क्या क्या आ रहे हैं? आपके मशरूम्स आ रहे हैं, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके? मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। अगर आपको याद हो तो MNS 2020 एक वन क्वेश्चन वाज देयर इन योर MNS 2020 एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको पूछा गया था कि ये किस क्लास में या फिर किस चीज़ का मेंबर है, यानी टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस भी 2-3 आए थे। तो यूनिट टैक्सोनॉमी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।
इसके बाद बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि दे आर फॉल्स फंजाई, ठीक है, इनको फॉल्स फंजाई कहते हैं। दे आर नोन एज, दे आर नॉट ट्रू फंजाई, ये ट्रू फंजाई नहीं है। क्यों रीज़न इनमें, क्यों इनको फॉल्स फंजाई कहते हैं, क्यों ये ट्रू फंजाई नहीं है? इनका ट्रू फंजाई ना होने का रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट फाउंड इन दीज फंजाइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई वी आर नोइंग देम एज फॉल्स फंजाई। जब कभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इन्हें किसी और क्लास में उठा के रख दिया जाएगा। अभी दिस क्लास इज डिनोटिंग फॉल्स फंजाई, वाई? बिकॉज दे आर लैकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So these are the 4 classes of kingdom fungi and these are the examples. They are the main points which you have to learn about the fungi. Kingdom fungi के बारे में ये वो main points हैं जो आपको learn करने हैं. अभी थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेते हैं वायरस की, वायरॉइड्स की एंड प्रियॉन्स की, क्योंकि ये आपके लास्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. लेकिन उसके पहले बता दूँ कि अभी जो आपका हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्सेज़ के लाइव सेशन में चल रहा है, पॉलिटी इज़ अबाउट टू बी फिनिश्ड. ये कब तक ख़त्म हो जाएगी? बाई 31 अक्टूबर तक पॉलिटी का जितना भी हम सिलेबस है कवर करके ख़त्म कर देंगे. इसके बाद वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश लाइक प्रीपोजिशन वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल्स. साथ ही साथ 5-6 टॉपिक हम स्टैटिक जीके के भी ख़त्म कर चुके हैं और पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट वो पूरा ख़त्म होने वाला है. बायोलॉजी में क्या चल रहा है? बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं और इस समय साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो ये अभी बायो में चल रहा है. और केमिस्ट्री में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम अबाउट टू बी फिनिश, संडे तक फिनिश हो जाएगा, यानी टुमारो इज़ अ लाइव सेशन, एक्स्ट्रा क्लास है वहाँ पे और वो ख़त्म हो जाएगा. तो इफ़ यू आर सो डेस्परेट टू क्लियर योर रिटन एग्जामिनेशन इन MNS21 फॉर MNS21, देन डू नॉट वेट, ज्वाइन आर लाइव सेशंस टुडे ओनली. वी आर वेटिंग फॉर यू एंड आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा? यू विल गेट आर नंबर ऑन योर स्क्रीन्स दैट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग डिस्प्लेड. चलिए, ये हो गया. स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट. वी विल बी राइट बैक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की क्या कहानी है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. Virus, as you all know that viruses are known as the connecting link between living thing and non-living things. ये living things और non-living things के बीच की connecting link है. यानी वायरस जब free environment में रहता है तो as a non-living thing behave करता है, और जैसे ही किसी living body के organism सेल के अंदर एंट्री लेता है तो as a living organism behave करने लगता है. अब वायरस का स्ट्रक्चर क्या होगा? वायरस में बेटा जेनेटिक मटेरियल इज़ फाउंड एट अ टाइम, आइदर DNA विल बी फाउंड और RNA. एक टाइम में या तो DNA हो सकता है या RNA, दोनों साथ नहीं होंगे. और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये इनक्लोज होता है बाय अ प्रोटीन कोड. ठीक है, प्रोटीन कोड होता है वो कैप्सोमियर की यूनिट होती है. कैप्सोमियर का पॉलीमर होता है. प्रोटीन कोड किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन कोड किससे मिलकर बना होगा? आपके कैप्सोमियर से मिलकर बना होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ वायरॉइड. वायरॉइड के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, दैट हु हैज़ डिस्कवर्ड वायरॉइड्स. तो टीओ डायनर हैज़ डिस्कवर्ड वायरॉइड्स. ये ध्यान रखिएगा, किसने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की? टीओ डायनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की है. वायरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेटेड RNA पार्टिकल्स. ये RNA कम मॉलिक्यूलर वेट के RNA पार्टिकल्स होते हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रोटीन कोड. इनमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जा सकता. ये इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं. नाउ व्हाट आर प्रियॉन्स? प्रियॉन्स क्या है? दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल. ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल हैं जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. तो आई होप किंगडम फंजाई और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और अगर आप सच में अपना MNS एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं 21 का, तो प्लीज़ हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करें. वी आर वेटिंग फॉर यू. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू सो मच.